So hello guys, welcome to my YouTube channel Shivu Classes. So today's topic is properties of multiplication of rational numbers, in which our first property is closure property. In the previous videos we have also discussed the properties of subtraction of rational numbers as well as the properties of additions of rational numbers, and now today we are going to discuss the properties of multiplication of rational numbers, in which the first property is closure property. So rational numbers are closed under multiplication, and closure property is if we are multiplying any two rational numbers, so we will get a rational number. For example, let a equals to 3 upon 5 and b equals to 2 upon 7. So in closure property, if we are multiplying these two rational numbers, means we are doing a multiplication by b, so we will get a rational number. So 3 upon 5 into 2 upon 7. So 3 2s are 6 and 5 7s are, it is 35. And 6 upon 35 is a rational number. So which means on multiplying any two rational numbers, we will get a rational number. It means rational numbers are closed under multiplication. So this is our first property. Now the second property is commutative property. So rational numbers are commutative under multiplication. So let us discuss this commutative property by taking an example. For example, let a equals to 7 upon 9 and b equals to 1 upon 2. So on multiplying these two rational numbers in any order, we will get the same result in case of commutative property. So commutative property is a into b, it is equals to b into a. So in the earlier videos I have also told कि equals to के अगर लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू जो लिखी होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, और इक्वल्स टू के से राइट साइड में जो वैल्यू लिखी होगी या राइट हैंड की तरफ हमारी जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं. सो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं. सो a इंटू बी, सो a इज 7 अपॉन 9, b इज 1 अपॉन 2. सो न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर. सो 7 1 is 7 and 9 2 is 18. सो लेफ्ट हैंड साइड इज 7 अपॉन 18. अब देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. सो राइट हैंड साइड b into a. So what is the value of b? 1 upon 2 into a is 7 upon 9. So numerator will multiply with numerator. 7 1 is 7 and 9 2 is 18. So here left hand side is equals to right hand side. So it means rational numbers are commutative under multiplication. Now the next property is associative property. So multiplication is associative for rational numbers in case of associative property. So associative property is a into within a bracket b into c is equals to a into b within a bracket into c. So let us consider this by taking an example. So a equals to 1 upon 5, b equals to 3 upon 4 and c equals to minus 2 upon 9. मीन्स हमने c की वैल्यू जो है वो हमने नेगेटिव रेशनल नंबर लिया है. So first of all we will solve the left hand side. So left hand side, that is a into within a bracket b into c. What is the value of a? A is 1 upon 5. So 1 upon 5 multiplied by b is 3 upon 4 multiplied by c is minus 2 upon 9. So first of all we will solve this bracket. तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें. So 1 upon 5 multiply 3 upon 4 into minus 2 upon 9. So numerator will multiply with numerator. So it is minus 6 and 4 9s are, it will be 36. अगर आप देखें तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 6 1s are 6 and 6 6s are 36. So now this will be 1 upon 5 into minus 1 upon 6. So numerator again will multiply with numerator, so it will be minus 1 and 5 6 are 30. So this is our left hand side. इसी तरह से हम देखें तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं. सो राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा? सो राइट हैंड साइड a into b
within a bracket into C. Now A is 1 upon 5, so 1 upon 5, B is 3 upon 4, and what is the value of C? C is minus 2 upon 9. So numerator will multiply with numerator, so 1 3s are 3, 5 4s are 20 into minus 2 upon 9. So 3 upon 20 into minus 2 upon 9, which is minus 6 upon 9 2s are 18, 180. So 6 1s are 6, 6 3s are, so minus 1 upon 30, which is left hand side is equals to राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस 1 अपॉन 30 आ रहा है और हमारा राइट हैंड साइड भी माइनस 130 आ रहा है. इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स. एंड नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन्स ऑफ रेशनल नंबर्स. So the next topic is properties of division of rational numbers, in which the first property is closure property, and the rational numbers are not closed under division. Means division के केस में rational numbers closed नहीं होते, means it does not follow the closure property. अब ये कैसे नहीं follow करते closure property को, तो इसको एक example के through हम समझते हैं. So let us take an example. For example, a equals to, let a equals to 2 upon 3 and b equals to 5 upon 6. So now a divided by b, बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में कि अगर दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर मिल जाए, ऐड करेंगे तब रेशनल नंबर मिल जाए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब रेशनल नंबर मिल जाए. अब उसी को डिवीजन का केस में समझते हैं कि अगर रेशनल नंबर्स को हम डिवाइड करें दो रेशनल नंबर्स को तो क्या हमको एक रेशनल नंबर मिलेगा. तो चलिए देखते हैं. सो a डिवाइडेड बाय b, सो 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6. सो 2 अपॉन 3. अब डिवाइड की जगह पर जब आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं तो द रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर नंबर, मीन्स जो बाद में नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल का मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा. सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो अब डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर बन जाएगा. मीन्स रेसिप्रोकल हो गया किसका, 5 अपॉन 6 का. रेसिप्रोकल ऑफ 5 अपॉन 6. सो यहाँ पे आप चाहें तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा लीजिए. सो 2 6 12 एंड 3 5 15, या फिर हमारा कहने का मतलब था कि 3 से 6 को डिवाइड भी करा सकते. 3 1 3, 3 2 6, तो 2 2 4 हो जाता और यहाँ 5 आ जाता. बट अभी हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो 3 4 12 एंड 3 5 15. अभी अगर हम देख रहे हैं तो हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है जब हम a डिवाइडेड बाय b करते हैं. चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सो a इज़ 2 अपॉन 3 एंड b हमने ले लिया 0. सो a डिवाइडेड बाय b करते हैं. सो 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 0. मेन यही है, इससे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा. सो 2 अपॉन 3, अब डिवाइड की जगह आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करिएगा एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन 1 अपॉन 0. एंड वैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, बट नहीं पता हो तो समझिए 1 अपॉन 0 जो होता है इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते. सो इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है. सो अभी इसको 2 1 2 एंड 3 इंटू 0 इट इज़ 0. सो 2 अपॉन 0 इज़ not defined. So means it is not a rational number. So that is why rational numbers are not closed under division. Clear? Now the next property is commutative property. So rational numbers are not commutative under division. Division के केस में rational numbers commutative नहीं होते. Division के केस में multiplication में पढ़ा था हमने कहा था कि a इंटू बी कर लीजिए या b इंटू ए कर लीजिए, आपको सेम वैल्यू मिलेगी. बट यहाँ पर क्या होगा, a डिवाइडेड बाय b, b डिवाइडेड बाय a क्या बराबर मिलेंगे. सो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a. मीन्स a डिवाइडेड b इज़ नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a. देखते हैं, चलिए करते हैं. सो लेट a इक्वल्स टू 7 अपॉन 9 एंड b इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.
सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं. सो 7/9 डिवाइडेड बाय 1/2. क्यों? क्योंकि हम पहले निकालना है a डिवाइडेड बाय b. ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में बता दिया. 7/9 डिवाइड की जगह जब आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर, सो इट विल बी 2/1 विच इज़ 14/9. सेम इसी तरह से हम राइट हैंड साइड जब आप निकालोगे, सो राइट हैंड साइड में क्या होगा, b डिवाइडेड बाय a. सो b डिवाइडेड बाय a. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? 1/2 डिवाइडेड बाय 7/9. बस यहीं पे क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा. सो 1/2 इंटू 9/7 विच इज़ 9/40. यहाँ 14/9 आ रहा है, यहाँ 9/14 आ रहा है बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर. सो दैट इज़ वाई रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन. सो a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय. आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी. अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की डिस्कशन करेंगे, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रेशनल नंबर्स जो होते हैं दे आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन. मीन्स a divided within a bracket b divided by c, it is not equals to a divided by b within a bracket divided by c. So इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो लेट a equals to 7/9, b is 1/2, c is -4/5 which is a negative रेशनल नंबर as the numerator is negative. So लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. चलिए. सो a divided by b divided by c within a bracket. So a is 7/9 divided by b is 1/2. Again division sign. c is -4/5. So इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं. ठीक है. सो 7/9 डिवाइडेड 1/2. डिवीजन का साइन है, इनटू करेंगे एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर, सो इट विल बी -5/4. सो 7/9 divided by, so numerator will multiplied with numerator, so it will be -5 and 2 4s are, it is 8. so अब इधर करते हैं सॉल्व. so 7/9 डिवाइडेड बाय, so डिवाइड की जगह इनटू लगाएंगे एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -5/8 इज -8/5 which is 7 8s are 56. so -56/45. so this is our left hand side value. now right hand side सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, a डिवाइडेड बाय b विद इन अ ब्रैकेट. सो a डिवाइडेड बाय b विद इन अ ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c. a इज 7/9 डिवाइडेड बाय b इज 1/2. तो ब्रैकेट नहीं होगा अभी. फिर डिवाइडेड बाय c इज -4/5. सो 7/9 इंटू एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, so it will be 2/1 divided by -4/5. so 14/9 डिवीजन की जगह क्या होगा, इनटू एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन विच इज -5/4. 14 5s are 70 -70/36. so अगर आप देखेंगे तो a डिवाइडेड बाय विद इन अ ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c, it is not equals to a divided by b within the bracket divided by c. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है -56/45 एंड यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -70/36. so both are unequal. so that is why rational numbers are not associative under division. now the next topic is additive and multiplicative identity. सो इन विच द फर्स्ट टॉपिक इज़ एडिटिव आइडेंटिटी. सो इसमें होता क्या है, जब भी आप ज़ीरो ऐड कराते हो किसी रेशनल नंबर में तो जो सम मिलेगा वो रेशनल नंबर इटसेल्फ होगा. सो व्हेन वी ऐड ज़ीरो टू अ रेशनल नंबर द सम इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ. मतलब जो भी आपने रेशनल नंबर जैसे 2/5 है उसमें आपने ज़ीरो ऐड करा दिया या ज़ीरो में आपने 2/5 ऐड करा दिया तो आपको वही 2/5 मिल जाएगा फॉर एनी रेशनल नंबर a. let us suppose 2/5. so 2/5 plus 0 और equals to 0 plus 2/5 equals to आपको क्या मिलेगा 2/5. so where 0, यहाँ पे जो 0 होगा that is called as the additive identity for rational number. so let us understand this again by taking an example. so let a equals to 2/5.
सो हमने क्या किया, हमने a प्लस ज़ीरो निकाला, सो विच इज़ 2/5 प्लस ज़ीरो विच इज़ 2/5, और या फिर 0 प्लस a निकाला, तो 0 प्लस 2/5 अगेन इट इज़ 2/5। तो इसको वैसा ही लिखा हुआ है कि अगर आप a प्लस ज़ीरो करें या 0 प्लस a करें तो वो a के बराबर होगा। सो दैट इज़ वाई a प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a। बट यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ज़ीरो क्या है। सो ज़ीरो इज़ कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ये ध्यान रखना है, ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर का, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर बाय वन, जब हमने किसी भी रेशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई किया, सो द प्रोडक्ट इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ। इससे पहले जिसमें पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि ऐड करेंगे ज़ीरो किसी भी रेशनल नंबर में तो जो सम मिलेगा वो रेशनल नंबर इटसेल्फ मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी इन विच ज़ीरो इज़ कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई करेंगे जब किसी रेशनल नंबर को वन से, सो प्रोडक्ट इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ। So a into 1 equals to 1 into a equals to a, where a is the rational number. So let us take an example. So let a equals to again 2/5. So a into 1 निकालिए, so 2/5 into 1 it is again 2/5. Similarly 1 into a निकाल दो, so 1 into a, so 1 into 2/5 again it is 2/5, which means a into 1 it is equals to 1 into a equals to a. Here 1 is called as the multiplicative identity. यहाँ पे जो 1 होगा that is called as the multiplicative identity for rational number, where 1, ये जो 1 है, so where 1 is called the multiplicative identity for rational। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडिटिव इनवर्स। सो फॉर एनी रेशनल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर माइनस ए ऑल्सो, सच दैट कि अगर हम a प्लस माइनस ए करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब क्या है कि अगर आपने एक पॉजिटिव रेशनल नंबर में उसी का अपोजिट रेशनल नंबर ऐड कराया तो आपको ज़ीरो मिलेगा। सो हेयर माइनस ए इज़ कॉल्ड एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो लेट ए इक्वल्स टू 2/5 हमने लिया, ठीक है, ये हमने 2/5 इज़ अ रेशनल नंबर। अब इसी का अपोजिट अगर लेंगे तो माइनस ए क्या होगा हमारा, इट विल बी माइनस 2/5, बिकॉज ए 2/5 तो माइनस ए माइनस 2/5 हुआ। ठीक है, अब आपने a माइनस ए प्लस माइनस ए निकालना है, तो a प्लस माइनस ए इज़ 2/5 प्लस, अब माइनस ए की वैल्यू क्या है, माइनस 2/5, so 2/5 and plus minus it is minus, so denominators are same, so 5 is the LCM and 2 minus 2 which is 0.5 and that is 0। ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो माइनस ए प्लस ए निकालेंगे, सो माइनस ए की वैल्यू माइनस 2/5 और प्लस ए इज 2/5, अगेन LCM 5 होगा, माइनस 2 प्लस 2 0, 0.5 0। तो कहने का मतलब ये है कि a प्लस माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए करें तो आपको ज़ीरो ही मिलेगा। जहाँ पर अगर माइनस ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस ए हो जाएगा, अगर प्लस ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो माइनस 2/5, और अगर आपसे माइनस 2/5 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाएगा तो वो 2/5, जस्ट द अपोजिट साइन ऑफ दैट रेशनल नंबर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो कह रहे हैं फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, भाई जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। भाई 0.1 तो लिखोगे और 0.1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या थी रेशनल नंबर्स में कि क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे, और जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू की वैल्यू तो 1 आ रही है ना। सो 0.1 क्या है, इट इज़ अ रेशनल नंबर। सो 0.1 हमारा रेशनल नंबर है, तो इसीलिए उन्होंने बोला फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अनदर नॉन जीरो रेशनल नंबर बी। फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो उसके लिए कोई दूसरा नॉन जीरो रेशनल नंबर बी भी एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से कि अगर ए को आप बी से मल्टीप्लाई कराएं या बी को ए से मल्टीप्लाई कराएं तो इनकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ए का, और अगर ए की बात करें तो ए जो है, ए इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, कैसे देखिए, अगर हमने मान लीजिए ए की वैल्यू ली 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब a इंटू बी निकालिए, सो 2/3 इंटू 3/2, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सो 1 आ गया। इसी तरह से आप b इंटू ए निकालो, b क्या है 3/2 और a क्या है 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अगेन 1 आ गया। दैट इज़ a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो अगर a इंटू बी कर रहे हैं तो b जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a का। अब a इंटू बी किया ना हमने, तो a जो होगा बस a के पॉइंट ऑफ व्यू से b जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ a का, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी 2/3 थी, तो b क्या आया 3/2। इसका रेसिप्रोकल ही तो है। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल, ठीक है, ऑफ द अदर नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स is also called the reciprocal of the number। मतलब a अब इक्वल टू 2/3, b क्या है 3/2 है, तो रेसिप्रोकल है a का। ठीक है, अगर हम b इंटू ए कहेंगे तो b के पॉइंट ऑफ व्यू से a रेसिप्रोकल हुआ। ठीक है, सो a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ b। क्लियर? तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शिवू क्लासेस। थैंक यू।